سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. دوسری حدیث دھڑکتے دل سے سننا. اگر حدیث نہیں ہوتی تو ہمت نہیں ہوتی یہ بولنے کی جو بولنے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ اماں سیدوں کی ماں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضور کی اولاد میں سب سے زیادہ حضور نے کس کو چاہا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے. ان کے آنے پہ حضور کھڑے ہوئے ہیں اور ایک دو مرتبہ نہیں بار بار کھڑے ہوئے. سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہے کہ میں نے جب بھی دیکھا کہ فاطمہ آ رہی ہے تو حضور اٹھ کر ان کے لیے اور صرف کھڑے نہیں ہوئے, اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنی جگہ پہ خود ان کو بٹھایا اور ان کو بٹھانے کے بعد کیا فرمایا, فدا کے امی و ابی یا فاطمہ, فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. حضور اپنے ماں باپ جس پہ قربان کرے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اور فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام, بخاری شریف کی حدیث ہے, میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر بھی جہنم حرام ہے اور جو فاطمہ سے محبت کرے اس پر بھی جہنم حرام ہے. شاعر نے کچا شعر کہا ہے, ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم, ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم. چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا ہے, چادر فاطمہ زہرا کو سمجھا کیا ہے. اللہ اکبر. کربلا کا پورا میدان, کربلا کا پورا میدان جس کا مرہون منت ہے اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. سنیو, کربلا کا حسین کبھی نہ ملتے اگر حسین کو فاطمہ جیسی ماں نہ ملتی. میرے امام نے جان احمد کی راحت کا مطلب کیا, جب سب بے چین ہوتے ہیں تو حضور کو یاد کرتے ہیں اور جب حضور بے چین ہوتے ہیں تو فاطمہ الزہرا کو. جان احمد کی راحت پہ ہر بے چین دل کا چین اللہ کا رسول ہے اور رسول اللہ کو جو راحت عطا کرے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور پھر کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو میرے لے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور ایک مقام پر کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور امے نور نور, یہ ہے سیدہ کائنات رسول اللہ کی نسل قیامت تک جس سے چلتی رہے گی وہ سیدہ. یہ شان ہے سیدہ کی. آقا نے فرمایا فاطمہ تو ام ابی ہاں ہے, تو میری ماں کی طرح, یعنی اشارہ دے دیا میری ماں کو کسی نے دیکھا نہیں سیدہ آمنہ کو, لیکن کردار آمنہ دیکھنا ہے تو کردار فاطمہ الزہرا. یہ شان ہے سید. لیکن اب سنو غیرت مصطفیٰ, غیرت مصطفیٰ. پھر کہہ رہا ہوں حدیث میں نہ آتا تو ہمت نہیں تھی. ایک دن سیدہ پاک نے سونے کے کنگن پہنے, حضور کی غیرت, بس بات پوری ہوتی ہے. حضور کی غیرت, سیدہ نے سونے کے کنگن پہنے. سونا عورت کے لیے حلال ہے, جائز, صحیح ہے. عورت اگر سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سونے میں لگ جائے منع ہے؟ بالکل منع نہیں, جائز بالکل. تو سب کی بیٹیوں کے بچیوں کے بیویوں کے لیے سونا حلال ہے, حضور کے گھر والوں کے لیے بھی ہے. لیکن پہن لیا سیدہ نے سونے کا کنگن. اللہ کے رسول ملنے کے لیے آئے, سیدہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا, منہ پھیر لیا اللہ اور منہ پھیر کر چلے گئے. توجہ کرنا سنیو, مائیں اور بہنیں تو آپ کی میں, کس کے گھر سے منہ پھیر کے جا رہے ہیں, کس کے گھر سے؟ بدعتوں منی فرمایا, میرے جگر کا ٹکڑا. یہ کسی کے لیے نہیں فرمایا, کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہا میرے جگر کا ٹکڑا. ایک ہی ذات ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں. حضور
नजर फेर कर, चेहरा फेर कर जाए। हराम काम सैयदा, हराम काम तो नहीं कर सकती, हराम काम तो नहीं कर सकती ना। बदाए मुस्तफा है, मासूम नहीं है लेकिन महफूज जरूर है ना। मगर हुजूर ने क्या किया, चेहरा फेर लिया। सैयदा रो पड़ी, बाबा चेहरा फेर के क्यों वापस चले गए। मिजाज जानती थी, अच्छा ये सोने के कंगन हराम नहीं थे, नाजायज नहीं थे, मकरूह भी नहीं थे, बदआए मुस्तफा के शायान शान न थे। एक चीज हराम नाजायज अलग होती है, लेकिन एक चीज क्या होती है, शायान शान न होना। सैयदा चूंकि रसूलुल्लाह की शहजादी है, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने राज की बात जाते जाते दुनिया से उन्हीं को कहा था कि मुझसे पहले आकर के तुम ही मुलाकात करोगी। उस शहजादी जिसके लिए खड़े होते थे, आज उन्होंने सोने के कंगन पहना, शायान शान नहीं थे, बस चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर करके हुजूर वापस हो गए। सैयदा ने फौरन सोने के कंगन, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाए, सोने के कंगन उतार कर हजरत बिलाल को दिया, जाओ बेच करके इसको मदीने के गरीबों में बांट दो। थोड़ी देर के बाद हुजूर फिर तशरीफ लाए तो कंगन नहीं थे। बाबा क्यों आप वापस चले गए, चेहरा फेर के फरमाया, मैं ये चाहता हूं कि मेरी शहजादी मेरे नक्श कदम पर हो। नबी के घर वालों को कब जेब देता है कि वो सोना और चांदी पहने, इसलिए वापस। अब आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी चहीती हस्तियों से हराम काम नहीं हुआ, नाजायज काम नहीं हुआ, खता नहीं हुई, गुनाह नहीं हुआ, सिर्फ शायान शान काम न था, तो हुजूर ने उनसे चेहरा फेर लिया। जब इतने चहीतों से इतनी नजाकत है मिजाज में कि एक काम शायान शान नहीं होता तो हुजूर रुख फेर लेते हैं, तो बताओ मुसलमानों, आज अपनी रातें कैसी गुजरती है। जो फजर की नमाज में सोता पड़ा रहता हो, जो जुआ खेलता हो, जो शराब पीता हो, जो औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करता हो, फिर हुजूर उसको प्यार से कैसे देखते होंगे, क्या उससे भी चेहरा न फेर लेते होंगे। और ये तो दुनिया है, दुनिया, ये तो दुनिया है। यहां तो मौज मस्ती में गुजार रहे हो, जब कब्र में जाओगे, कब्र में जाओगे मेरे भाई, और जब कब्र में जाओगे और अकेले दफना दिए जाओगे, कितनी बेबसी और बेकसी होती है ना। बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े इल्म वाले, बड़े बड़े डिग्री वाले, बड़े बड़े खिताबात और अलकाबात पाने वाले, जिनके लिए जलसों में नारे लगते थे, जिनके लिए जलसों में तालियां बजती थी, जिनके लिए जलसों में थालियां बजती थी, जिनके लिए बड़े बड़ी डिग्रियों के ऐलानात होते थे, जब मरते हैं तो जनाजे में कितने बेकस और बेबस नजर आते हैं। अब बताओ, कब्र में रखे गए, सबने मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया, दबा करके चले गए। इंसान बेबसी में सोचता है, भाई तू भी गया, बाप तू भी गया, अब्बा तुम भी गए, बेटो तुम भी गए, यार दोस्त, देखो कितनी बेवफा दुनिया है। जब सब छोड़कर चले जाएंगे ना, तो वो जाने वफा तशरीफ लाएंगे कब्र में। और मेरे इमाम कहते हैं, जब हुजूर कब्र में आएंगे तो कैफियत क्या होगी। इमाम कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। मुझे बताओ, अकेले हुजूर कब्र में बचाने के लिए आ गए। मेरे इमाम कहते हैं, माँ जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, जाते ये हैं, आते ये जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतीना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। ये मेरे नबी की शान है, मेरे नबी का मकाम है। अब मुसलमानों सोचो, जब सैयदा फातिमा के हाथ में सोने के कड़े देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं, सैयदा आयशा के घर में जब वो रेशम के पर्दे देखकर उनके घर से मुंह फेर कर चले जाते हैं, अब बताओ हुजूर कब्र में तशरीफ लाए, आपको नमाजी न पाया, आपको रोजेदार न पाया, आपके चेहरे पे दाढ़ी न पाया, और नाराज होकर कब्र से मुंह फेर कर चले गए। बताओ क्या हुआ। किसको आवाज दोगे, किसको पुकारोगे। यहां जो धितिंग आपकी चल रही है, वहां कोई धितिंग चलेगी न, वहां किसी की दादागिरी चलेगी न किसी की बाबागिरी चलेगी। वहां तो कब्र में बेबसी ही बेबसी होगी। अगर उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है, क्या होना है।
राह पुरखार है, क्या होना है, पांव अफगार है, क्या होना है। हम तो जब सुनते हैं कि कब्र में हुजूर आएंगे तो उछलते हैं, कभी ये भी सोचा हुजूर आएंगे और हम जैसे ना हंजारों पर नजर पड़ी, और अल्लाह ना करे 1000 बार ना करे। उनकी रहमत से तो ऐसा नहीं, लेकिन उनकी गैरत से डर लगता है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, इस उम्मत आसी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। बहुत नाजुक है उनकी गैरत, अगर मुंह फेर कर कब्र से चले गए तो कितनी बर्बादी होगी, कितनी तबाही होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हम हुजूर का सामना कब्र में कैसे करेंगे? क्या गुनाह नहीं किया, क्या जुर्म नहीं किया, क्या पाप नहीं किया, हुजूर का सामना कैसे करेंगे? सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो महबूब सुबहानी थे, जब मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो हुजूर के दरबार में उनकी खड़े होने की हिम्मत न हुई, बस खड़े होके सलाम किया और सलाम करके हट गए, ये कहते हुए अल्लाह इनके सदके मेरी मगफिरत कर दे। हुजूर के सामने खड़े होने की गौस पाक ने हिम्मत नहीं की। पता नहीं कहां तक ये बात दुरुस्त है। हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन ने, हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम के बारे में मुझे बताया कि जब मुफ्ती आजम से किसी ने कहा कि सरकार की सुनहरी जालियां कितनी खूबसूरत है ना, तो मुफ्ती आजम ने कहा हमने भी सुना है कि बहुत खूबसूरत और नूरानी जालियां हैं। तो किसी ने कहा हुजूर आप तो 2-2 मरतबा मदीना शरीफ गए और आप कहते हैं कि हमने भी सुना है, और आप महीनों महीनों मदीने मुनव्वरा रहे। तो मुफ्ती आजम ने फरमाया सुनहरी जालियों के सामने मेरी जाने की हिम्मत नहीं होती थी कि हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा। अपने वक्त का कुतुब मुफ्ती आजम आलम इस्लाम वहां मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे, गौसे पाक वहां खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे। ये अदब है। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा था, इकबाल तुम जर्मनी तक जाते हो, बरतानिया तक जाते हो, मदीने क्यों नहीं जाते? तो इकबाल ने कहा जा सकता हूं, जाने का शौक भी है, लेकिन हिम्मत नहीं पाता, क्योंकि हुजूर को जाके मुंह क्या दिखाऊंगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं, अब बताओ जब इतने बड़े बड़ों से मुंह फेरा जा सकता है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर ने हमसे मुंह फेर लिया है? और जिससे हुजूर मुंह फेर ले, अल्लाह की रहमत उससे मुंह फेर लेती है। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिसकी तरफ रुख कर ले वो पापी नहीं रह जाता, वो गुनहगार नहीं रह जाता। अब फैसला आपने करना है कि हुजूर की नजरे करम के मुस्तहिक बनना चाहते हो या हुजूर अलैहिस्सलाम मुंह फेर ले, किस पे राजी हो? आपकी मर्जी है। अगर ये चाहते हो कि हुजूर मुंह फेर ले, फजर में सोते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। ताश के पत्ते खेलते रहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनते रहिए, कुछ नहीं कहेंगे। जो मर्जी कर लो। कुतुल कुलूब में शेख अबू तालिब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लिखी है। ये तसव्वुफ की अव्वलीन किताब है, अव्वलीन किताब है तसव्वुफ की। शेख अबू तालिब मक्की कुतुल कुलूब में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुझसे इश्क का दावा करे और रात भर सोता रहे, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा। यानी कि जो आशिक होगा वो कभी रात भर सो नहीं सकता। वो या तो इबादत करेगा, या तो वो दुरूद पढ़ेगा, या तो वो कुरान की तिलावत करेगा, या तो हुजूर के लिए रोएगा, या तो हुजूर के लिए आंसू बहाएगा। अब मुझे बताओ, आका खुद फरमा रहे जो इश्क रसूल का दावा करे पूरी रात सोए वो झूठा है। फजर की नमाज रात को नहीं होती, उलमा से पूछो सुबह को होती है। जो रात को सोए, रात में इबादत न करे, हुजूर फरमाए वो इश्क रसूल के दावे में झूठा है। जो सुबह को फजर में भी ना उठे, उससे बड़ा झूठा कौन होगा? आप कहते हैं मौलाना तलवारें चल रही है, हम बर्बाद हो रहे हैं। हम कहते हैं हुजूर जिसको झूठा कह दे, मैं नहीं, मेरी औकात क्या? मैं तो तुम सब में ज्यादा गिरा बड़ा हूं, लेकिन आपसे पूछता हूं हुजूर जिसको झूठा कह दे, फजर में क्यों नहीं उठते? नींद नहीं खुलती, ट्रेन पकड़ने के लिए नींद खुलती है, फ्लाइट पकड़ने के लिए नींद खुलती है, 6000 और 8000 की नौकरी पे जाने के लिए नींद खुलती है, और हुजूर की आंखों की ठंडक के लिए नींद नहीं खुलती। बल्कि बड़ी माजरत के साथ मेरे अजीज, 3 बजे तक जलसे में जग सकते हैं, मगर फजर की नमाज में 10 बजे उठ नहीं सकते। जिस कौम को हुजूर झूठा कह के उससे मुंह फेर ले, वो कौम कैसे तरक्की करेगी? इस तरह के एक नहीं 1000 जलसे कर लो,
کامیابی نہیں مل سکتی. اگر کامیابی چاہتے ہو تو حضور کی نظر چاہیے. ارے انسان تو انسان ہے. اگر حضور پہاڑ پہ پیار کی نظر ڈال دیں تو وہ پہاڑ بھی جنتی ہو جاتا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے میں احد سے محبت کرتا ہوں یہ جنت میں جائے. پتھر کو جنتی بنا دے پیار کی نظر ڈال کر. ستون حنانہ کو ایک درخت کے سوکھے تنے کو جنتی بنا دے ایک نظر. ان کی نظر کی بات ہے لیکن یاد رکھنا جس پہ نظر پڑتی ہے پھر وہ مجرم نہیں رہ جاتا. میرے پاس ہزاروں دلیلیں ہیں. ایک دلیل یہ بھی دے دوں قطب الاقطاب سرکار قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں اکثر غریب نواز آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے تھے. کبھی کبھی آنکھ کھولتے تھے اور آنکھ کھول کر جس کو دیکھ لیتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے. جب غریب نواز نظر ڈال کر ولی بناتے ہیں تو رسول اللہ کی نظر پڑ جائے تو آدمی کیا بن سکتا ہے. ہم نمازی کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ نگاہ رسول سے محروم تو نہیں. سود کے دندے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ پر آپ جانے. اللہ کرے مجھ پہ بھی نظر پڑ جائے اور آپ پر بھی نظر پڑ جائے. ہمارے حال کی اصلاح ہو جائے.